Hello viewers, I am Rajendra Kumar and you are watching your own channel Gateway to English. Dear friends, ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੌਇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਟੈਂਸ ਬੇਸਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਇਹ ਟੈਂਸਿਸ ਵਾਲਾ, ਟੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਪੀਕਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਿਪੀਕਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਈਟ ਐਪਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਈਟ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟੇਕ ਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟੇਕ ਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਪਨ ਦਾ ਡੋਰ, ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 2-3-4 ਲੈਕਚਰਸ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੌਇਸ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੈਂਸ ਹੈ ਲਾਸਟ, ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਸਿਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਲਾਸਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੈਸਿਵ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੈਸਿਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਪਰ ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੈਸਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਛਾਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਐਂਡ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ। ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਇਓ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਬੀਨ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਸਮਝ ਜਾਇਓ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ। ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਬੀਨ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੋਈ, ਪੈਸਿਵ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦਾ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਰੂਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਵਿਲ ਹੈਵ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਵਿਲ ਹੈਵ ਨਾਲ ਬੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਬਾਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਵਿਲ ਹੈਵ ਮੇਡ ਅ ਲੈਕਚਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਡ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
both are correct. Okay, चलो इसका पैसिव बनाने ਆਪਾਂ देखो जी, टीचर will have made a lecture. a lecture ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, सब्जेक्ट. a lecture will have been, shall have been, ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਡ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ, will have been ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ, will have been. shall have been नहीं लगेगी, क्योंकि जो shall have है ये ਆਪਾਂ यूज करते हैं जी I and we subjects नाल. इत्थे ना तो I आया ना ही इत्थे we है, a lecture है, इस करके will have been. उस तो बाद थर्ड फॉर्म ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ थर्ड फॉर्म ਹੁੰਦੀ है, ठीक है, एज इट इज लिखनी ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ने. परफेक्ट टेंस अपने कोल तीन ने, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ verb ਦੀ थर्ड फॉर्म ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, सो फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं पैंदी ਆਪਾਂ ਨੂੰ, सेम ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ a lecture will have been made by teacher. सो ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ऑब्जेक्ट ਦਾ सब्जेक्ट बन गया, उस तो बाद हेल्पिंग वर्ब लग गई जी. हेल्पिंग वर्ब तीन पार्ट्स वाली हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन एक हेल्पिंग वर्ब है इत्थों लैके इत्थों तक, ठीक है, पार्ट तीन ने, एक दो ते तीन, ठीक है जी. उस तो बाद अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाती, बाय लगाता, उस तो बाद जो सब्जेक्ट सी उसनू इत्थे आपां लिख दिता, इसनू कहते हैं बाय प्लस एजेंट. ओके, डूअर है ये, डूअर काम नू करने वाला. ओके, शी विल नॉट हैव वॉश्ड द क्लोथ्स, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, विल आ गया, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, विल हैव थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट है जी, एक्टिव है, इत्थों पता लग गया अपन, ठीक है. इस दे विच दो शब्द आए ना, उच्चारण का ध्यान रखियो, शी विल नॉट हैव, इनू कई बच्चे जो बोलते हैं वाश्ड, ठीक है, वॉशड भी कहने, वाशड भी कह देंगे ने, पर असल में ध्यान रखना ये जो डी है ना, डी इस दे विच डी दी कोई साउंड नहीं हुंदी, इत्थे डी है जो ट वर्गी साउंड है, ट, वॉस्ट, ठीक है, डी नहीं है, आपको लगता है डी है, पर ट है, ट, टी दी साउंड है, वॉस्ट. द इत्थे ध्यान, कई बच्चे इसको बोलते हैं क्लोथिज, जो बच्चा बोलता है इसका मतलब वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा, ठीक है, इसका सही उच्चारण किया है, थ साउंड नहीं है बल्कि द साउंड है, दद्दा है, द, इसको बोलेंगे आप क्लाउड्स, ठीक है, क्लोथिज बिल्कुल नहीं है. ओके, चलो तो उच्चारण की गल आ गई सी. हुण आपां इसनूं बनाउणे पैसिव, ऑब्जेक्ट की है द क्लोथ्स नूं इधर लिखांगे आपां, द क्लोथ्स विल, शैल हैव बीन नहीं आएगा, विल हैव बीन आएगा, क्योंकि आई वी नहीं आया, आई हुंदा फिर शैल हैव बीन लगांदे, वी हुंदा इत्थे तां भी शैल हैव बीन लगदा, पर हुण इत्थे की है ना आई है ना वी है, द क्लोथ्स है इस करके विल, ते नेगेटिव सेंटेंस है नॉट भी लगाना पड़ेगा, विल तो बाद नॉट लगेगा, द क्लोथ्स विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय शी दा इधर जाके हो जाएगा जी हर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी हर है, सब्जेक्टिव फॉर्म या नॉमिनेटिव केस कह लिए शी है, शी हर शी, इधर तो इधर लेके जाने हर है, जो इधर तो वापस इत्थे लेके आना है ता शी हो जाएगा. ओके, द क्लोथ्स विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय हर. इत्थे ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब थ्री पार्ट्स में देखो, विल हैव बीन, नॉट कित्थे लग गया, फर्स्ट पार्ट तो तुरंत बाद, ये गल दिमाग च रखनी है. जेकर इंट्रोगेटिव बनाना है तां भी ये फर्स्ट पार्ट है, सिर्फ विल या शैल ही सब्जेक्ट तो पहला चला जाएगा, हैव बीन उत्थे ही रखना है, इसनूं नहीं हिलाउणा अपनी थां तो. ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस है देखो, शैल आई हैव डन माई होमवर्क, शैल आई हैव डन माई होमवर्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट की है इसके विच होमवर्क, ठीक है जी, होमवर्क नूं एज ए सब्जेक्ट यूज करांगे. एक होर वर्ड इसके विच माई भी है, ये भी ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, शैल आई हैव डन माई होमवर्क. हुण यानी कि ये इस तरह का सेंटेंस आ गया अपने कोल कि सब्जेक्ट दे विच ना थ्री पार्ट्स हो गए, माई होमवर्क पूरा है, मैं कीता होएगा, मेरा होमवर्क, ते पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है, सारा जो है एज ए सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है. इत्थे लिखांगे आपां माई होम वर्क. हुण इस नाल हेल्पिंग वर्ब की लगनी है जी, शैल ता इत्थे आई करके आया हुआ है, ठीक है जी, आई सी इस करके शैल लग्या हुआ है,
पर हुण इत्थे सब्जैक्ट की बन गया माई होमवर्क। हुण माई होमवर्क ना तो शैल यूज नहीं करांगे, विल हैव बीन यूज होएगा। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इस करके जो विल हैव बीन है, इसका जो विल है इसनूं सब्जैक्ट तो पहला लिखांगे ते इसका जो बाकी पार्ट बच गया हैव बीन उसनूं आपां सब्जैक्ट तो बाद विच इत्थे लिखांगे। विल माई होमवर्क हैव बीन, उस तो बाद थर्ड फॉर्म दे विच हैगी वो पहला सेम लिख दांगे यानी डन, फिर आ गया जी बाय आई, इत्थे से आई दा ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाती है जी अपने कोल मी, ते इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का साइन इंटरोगेशन का साइन अपन लगा देवांगे, क्योंकि जे इंट्रोगेटिव है तो पैसिव इंट्रोगेटिव ही बनना है। ठीक है जी। विल माई होमवर्क हैव बीन डन बाय मी, उम्मीद करना सेंटेंस समझ आ गया होगा। ये ध्यान रखना ऑब्जेक्ट कई बार ना देखो 3 वर्ड्स वाला ऑब्जेक्ट आ गया, पछाण च आना चाहिए अपने, जेकर ऑब्जेक्ट पकड़ विच नहीं आया तो सेंटेंस गलत हो सकता है। ठीक है जी। देख लो अगला सेंटेंस, विल ही नॉट हैव डन हिज ड्यूटी बाय टुमारो। वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि ये सेंटेंस जो है एक्टिव है कि पैसिव है। इत्थों कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है कई बच्चों को कि बाय टुमारो आ गया जी, बाय तो पैसिव च लगता है। ठीक है, इसनों कई बच्चे हो सकता है पैसिव मान लेन, पर प्यारे बच्चों ये पैसिव नहीं है। सिर्फ बाय नाल आपां डिसाइड नहीं कर सकते कि सेंटेंस पैसिव हो गया जी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ां हेल्पिंग वर्ब्स भी देखनियां ने आपां ने। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स तो आपां नूं पता लग जाता है। हुण देखो इत्थे हेल्पिंग वर्ब विल आई हुई है, हैव है, बीन नहीं है लग्या होया नाल। ठीक है, विल हैव थर्ड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है, विल हैव ते थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इसका मतलब सेंटेंस है कि है एक्टिव है, पैसिव नहीं है। ठीक है जी। हाँ, तो इसको किवें बनावांगे आपां, देखो ऑब्जेक्ट की है विल ही नॉट हैव डन हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी इसके विच ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हिज ड्यूटी नूं एज ए सब्जेक्ट यूज करांगे, हिज ड्यूटी। हिज ड्यूटी नाल शैल हैव बीन, विल हैव बीन विचों किहड़ी हेल्पिंग वर्ब यूज होएगी, विल हैव बीन, क्योंकि इत्थे ना आई आया ना वी आया, आई जां वी हुंदा तां आपां यूज करदे फिर शैल हैव बीन। हिज ड्यूटी विल हैव बीन, विल आपां नूं इत्थे लगाना पएगा ते हैव बीन इधर लगेगा, हैव बीन। ते सेंटेंस नेगेटिव भी है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है, तो ये नोट भी आया है, इसके विच नोट कित्थे यूज करांगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो तुरंत बाद आपां ने यूज करना है जी नोट। ये ध्यान रखना, जेकर सेंटेंस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है तो नोट हमेशा ही, नोट नेवर जो भी नेगेटिव पार्टिकल है वो जो है सब्जेक्ट तो तुरंत बाद लिखना है। हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट इत्थे आ गया, बाकी जो पार्ट बच गए नोट तो बाद लिखने ने। विल हिज ड्यूटी नॉट हैव बीन, फिर आ गया थर्ड फॉर्म डन। ठीक है, बाय टुमारो इत्थे लिख देंगे आपां ये बाय टुमारो, टुमारो बाय हिम, बाय हिम भी लिखना पड़ेगा, ही है ना, बाय हिम भी बन जाएगा इत्थे जाके। ये भी हो सकता है कि बाय हिम आप इत्थे लिख दिए, बाय टुमारो बाद च लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। विल हिज ड्यूटी नॉट हैव बीन डन बाय हिम बाय टुमारो, बाय टुमारो लास्ट ते भी जा सकता है, इत्थे बाय हिम आप लिख सकते हैं। सो ये ध्यान रखना, बाय नूं देख के कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, बाय जो है एक्टिव सेंटेंस विच भी आ सकता है। आपने देखनिया ने हेल्पिंग वर्ब ते मेन वर्ब्स देखा करो, उत्थों क्लियर होंदी है गल। ठीक है जी। चलो अगला सेंटेंस देखो जी, इधर द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म बाय, इथों अपन पता लग गया कि सेंटेंस की है पैसिव है। इसको की बनाना एक्टिव, एक्टिव बनाने लिए की करना पड़ेगा, बीन रिमूव करना पड़ेगा, बाय रिमूव करना पड़ेगा। ये दो रिमूव होंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनावांगे, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। मी का इधर आई बन जाएगा आई हो गया। ठीक है, आई नाल हम हेल्पिंग वर्ब देखो विल हैव तो नहीं लगेगी। ठीक है, विल हैव नहीं लगेगा, आई नाल की लगेगा, केड़ी हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव। इत्थे आएगा आई शैल हैव, बीन कट गया जी क्योंकि एक्टिव बना रहे हैं हुण आपां। आई शैल हैव थर्ड फॉर्म लगनी है, फिर थर्ड फॉर्म एज इट इज रहनी है क्योंकि इधर भी थर्ड फॉर्म है पैसिव च ते एक्टिव दे विच भी थर्ड फॉर्म ही है, इस करके रिटन दा रिटन आई शैल हैव रिटन द लेटर, ये हो गया जी अपना एक्टिव बन गया। ठीक है जी। ते नेक्स्ट सेंटेंस देखो, व्हाई विल यू हैव डिस्टर्ब्ड हिम, व्हाई विल हैव थर्ड फॉर्म, बीन नहीं आया किते भी, इट मींस सेंटेंस की है
एक्टिव है, पैसिव नहीं है। ठीक है जी। सो इस तरह का सेंटेंस जिस WH फैमिली का वर्ड आया होवे, सब तो पहले तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ WH फैमिली ਦੇ वर्ड ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਿਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਹਿਮ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਿ ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ। तो विल लगावांगे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, हैव बीन सब्जेक्ट तो बाद चला गया जी। ठीक है जी। why will he have been, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। थर्ड फॉर्म की है डिस्टर्ब्ड, ऑलरेडी बनी हुई है, थर्ड फॉर्म पहले ही है। ठीक है जी। ये एडजेक्टिव लग गई। उस तो बाद किया जाएगा by। ठीक है। why will he have been disturbed by, इत्थे ये सब्जेक्ट सी, ए बन गया जी ऑब्जेक्ट, लास्ट लग गया जी क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। इस तरह बन गया इसका पैसिव, एक्टिव का पैसिव बन गया। ठीक है जी। लास्ट सेंटेंस अपने को है आज दी वीडियो का, we will not have allowed them to run away। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, will ਆ ਗਿਆ, have ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸਿਵ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। will have ਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। इतों पता लगता है कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है, किसी होर इस तो कंफ्यूज ना हो जाए भी कोई होर टेंस आ गया जी। ठीक है। हाँ, पैसिव में बनेगा ऑब्जेक्ट लभो, वी विल नॉट हैव अलाउड देम, असी अलाउड नहीं किता होवेगा किस नूं, उन्हां नूं नहीं किता होवेगा, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। देम है, देम नूं जदों सब्जेक्ट के तौर पे यूज करें की बन जाएगा दे, बन जाएगा जी दे। ठीक है जी। दे नेगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट हैव, आपां इत्थे लिखांगे विल not have been, will not have been। ठीक है। पैसिव बना रहे हैं ना, will ए लगेगा, will have been, not लग गया है नेगेटिव, इसलिए नॉट भी लगा था। they will not have been allowed, थर्ड फॉर्म आ गई जी allowed, ए allowed हो गया जी, लो जी। ठीक है। they will not have been allowed, ए लिख दो to run away, इन्हों एज इट इज लिख दो to run away by, इत्थे we सब्जेक्ट है, इत्थे हो गया जी us, ये बन गया जी दा पैसिव। ठीक है। इस तरह के लंबे सेंटेंस ਨੂੰ देख के घबराना नहीं। ठीक है। मेन गल ये होंदी कि सब्जेक्ट ਨੂੰ पकड़ो, ऑब्जेक्ट ਨੂੰ। जेकर पैसिव है ਤਾਂ ऑब्जेक्ट देखो ਕਿਹੜਾ, एक्टिव है ਤਾਂ ऑब्जेक्ट ਲੱਭੋ। ठीक है। ऑब्जेक्ट ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਟੈਂਸ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ रूल लगा दो। जेकर एक्टिव है ऑलरेडी ਤਾਂ पैसिव ਦਾ रूल लगा दो, पैसिव है ਤਾਂ एक्टिव ਦਾ रूल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करना कि ये टेंस बेस्ड ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फैसिलिटीज़ बहुत घट होंदियां ने, ताकि उन्होंने भी फायदा हो सके। सो हुण दिओ मैनूं इजाजत, आपां मिलदे हां नैक्सट वीडियो दे विच। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।